Good morning, students. Welcome to computer class. Today we will start session 5, Unit 3, Part B, exporting and printing slideshow and presentation. In this session, we will do how to create slideshow, how to print a presentation, how to create presentation in PDF form, web page and flash file. Introduction. In the previous session you have learnt about various useful feature of Impress and by now you must be ready to create very good presentation. तो पहले के सेशन में आप लोगों ने अलग अलग फीचर्स पढ़े इम्प्रेस के, जिसके बाद आप जो है बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो. Every presentation culmination happens in the form of a slideshow. In this session you shall learn to do the same. You shall also learn to print and export presentation, but before you do that you must know how to work in slideshow view as it gives you much required functionality after you have created the slides and before you prepare your slideshow. कहते हैं कि आपने अच्छी सी स्लाइड बनानी सीख ली है, परंतु बिफोर यू डू दैट यू मस्ट नो हाउ टू वर्क इन स्लाइड शो इंटरव्यू. वो स्लाइड शो करने से पहले आपको स्लाइड शो इंटरव्यू में कैसे काम करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है. In other words, slideshow interview help in creating customized slideshow by helping you to keep the required slides only. Working slideshow interview displays rows of thumbnail views of slides. Slideshow interview में क्या कहते हैं, जितनी भी आपने स्लाइड्स बनाई हैं उनकी थंबनेल व्यू की रोज़ आपकी स्क्रीन पे दिखाई देती है, देख सकते हैं. Miniature slides. A slide short review you can easily rearrange slide, delete them और duplicate them. स्लाइड शॉर्ट रिव्यू से जो है आप बड़ी इजीली जो है स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और डुप्लीकेट भी बनाना चाहो तो बना सकते हैं. Switching to slide short review. As you know that slide short review can be switched by clicking at the slide shorter button on the top of the slides. जैसे स्क्रीन पे दिखाया गया है यहाँ पे स्लाइड शॉर्ट रिव्यू पे आप क्लिक कर रहे हैं, जो भी स्लाइड्स बनाई है आपने इस तरह से जो है स्लाइड शॉर्ट रिव्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ये ओपन हो जाता है. Once you are into the slide short review, you can arrange the order of the slide, duplicate slide and delete them, applying changes to multiple slides. Let us learn how it can be done. Rearranging slide. To change the order of slide you need to first go into the slide short review and after that you need the following step. अगर आप अपने जो स्लाइड्स का ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्लाइड शॉर्ट रिव्यू में जाएंगे, स्लाइड्स पे जाएंगे और ये स्टेप जो है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं. क्लिक एट द डिजायर्ड स्लाइड वेयर पोजीशन इज़ टू बी चेंज्ड. जिस स्लाइड की पोजीशन आपने चेंज करनी है उस पर क्लिक करेंगे. होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द स्लाइड इन ए न्यू पोजीशन. माउस का बटन होल्ड करके रखेंगे और ड्रैग करके आपको नई पोजीशन पे उसको छोड़ देंगे. ए वर्टिकल लाइन अपीयर टू इंडिकेट वेयर द स्लाइड विल ड्रॉप after you release the mouse button. Now release the mouse button and Impress will position the selected slide at the new slide. जब माउस को बटन छोड़ दीजिए जो आपकी स्लाइड जो है नई पोजीशन पे आपकी आ जाएगी. फिर selecting slide. If you want to apply a change on multiple slide then you need to select them simultaneously. अगर आपको ये ऑप्शन जो कि मल्टीपल स्लाइड्स पे आपको ये ऑप्शन लगाना है तो आपको जो है उनको साइमल्टेनियसली सेलेक्ट करना पड़ेगा साथ के साथ. You can select multiple slide in one of the following manner. Hold down the shift key and select the first and last slide in a series of continuous slide to be selected. ये ऑप्शन जो है तब आप अप्लाई कर सकते हैं शिफ्ट वाला जब आपकी सारी स्लाइड जो है बिल्कुल कॉन्टीन्यूस मैनर में लगातार हैं, बीच में से किसी स्लाइड को आपने ड्रॉप नहीं करना. तब आप एक हाथ से शिफ्ट की दबाइए, पहली स्लाइड पे क्लिक करिए और लास्ट स्लाइड पे क्लिक करिए, सारी स्लाइड आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी. अगर आपकी स्लाइड से नॉन कॉन्टीन्यूस हैं, लगातार नहीं है, बीच बीच में गैप है, तो उसके लिए आप जो है कंट्रोल की का यूज़ करेंगे शिफ्ट की बजाय. कंट्रोल की को दबा के रखेंगे और जो जो स्लाइड्स आपको सेलेक्ट करनी है उस पर क्लिक करते जाएंगे, वो सारी सिलेक्ट आपकी नॉन कॉन्टीन्यूस स्लाइड जो सेलेक्ट हो जाएंगी. कॉपिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड किस तरह से करते हैं. यू कैन कॉपी एंड डिलीट सेलेक्टेड स्लाइड इन स्लाइड शॉर्ट रिव्यू and see the effect on the arrangement and flow of slide immediately. To copy or delete slide you need. Select the slide or slides you are to be copied or deleted. To copy either press Ctrl C से कॉपी कर सकते हैं, आपको कमांड पता है. एडिट मेनू में जाके कॉपी कमांड पे क्लिक कर सकते हैं. आफ्टर दिस ट्रैक द वर्टिकल लाइन कर्सर टू डिजायर्ड पोजीशन द स्लाइड शॉर्ट रिव्यू एंड प्रेस Ctrl V या एडिट में जाकर पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो नई स्लाइड आपकी जो है कॉपी हो जाएगी. टू डिलीट प्रेस आइदर डेल की और डिलीट स्लाइड ऑप्शन फ्रॉम द एडिट मेनू. उसके बाद क्रिएटिंग स्लाइड शो.
How to create slideshow? Slideshow, as you know, is the name of running electronic presentation. When you give a slideshow to on a computer, you can use special visual, sound and animation effect. Various effects can be used in the slideshows are first animation and transition. Transition are the special effect that introduce a slide in a slideshow. ट्रांजिशन क्या है? स्पेशल इफेक्ट्स हैं जो आप स्लाइड्स के ऊपर देते हैं स्लाइड शो के अंदर. यू कैन चूज़ फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ ट्रांजिशन एंड वेरी देयर स्पीड. आप बहुत सारे ट्रांजिशन फैक्टर कोई भी चूज़ कर सकते हैं और उनकी स्पीड को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं. ट्रांजिशन की डेफिनेशन जो है बॉक्स में आपकी लिखी हुई है. उसके बाद एनिमेशन आर स्पेशल साउंड और विजुअल इफेक्ट दैट यू कैन ऐड टू टेक्स्ट और अदर ऑब्जेक्ट. एनिमेशन क्या है? स्पेशल साउंड और विजुअल इफेक्ट हैं जो टेक्स्ट भी और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी आप दे सकते हैं, सच एज ए चार्ट, म्यूजिक एंड साउंड एंड वीडियो. An occasional burst of music or sound during a transition or animation can focus the audience on the slideshow. You can also play videos that emphasize on your presentation objective. एनिमेशन की भी डेफिनेशन आपको बॉक्स में दी गई है. लेट अस नो हाउ टू लर्न ऐड दीज इफेक्ट टू द स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन. पहला है ऐड ट्रांजिशन टू ए स्लाइड. किस तरह से आप ट्रांजिशन ऐड करते हैं? इन स्लाइड और स्लाइड शो रिव्यू सेलेक्ट द स्लाइड और स्लाइड्स यू वांट टू ऐड ए ट्रांजिशन. कहता है कि आप एक स्लाइड पे या बहुत सारे स्लाइड्स पे करना चाहते हैं, उनको सेलेक्ट कर लीजिए. उसके बाद ऑन द स्लाइड शो मेन्यू में जाएंगे. स्लाइड शो मेन्यू के जाने के बाद स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे. जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा है स्लाइड शो में गए, स्लाइड ट्रांजिशन पे जाएंगे आप. स्लाइड ट्रांजिशन पे जाने के बाद ये नीचे ऑप्शन मेन्यू बुक खुली आपकी ऑप्शन खुले हुए हैं, ये स्क्रीन आपकी स्क्रीन के ऊपर खुल जाएगी. उसके बाद इन स्लाइड ट्रांजिशन पैनल इन द अप्लाई टू सिलेक्टेड टेक्स्ट बॉक्स, ये सारे आपके ट्रांजिशन यहाँ आपके दिए गए हैं. जो ट्रांजिशन आपको चाहिए उस पर क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद दो मेनू आपको राइट क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन खुलते हैं. एक आता है क्लिक टू ऑल स्लाइड, अप्लाई टू ऑल स्लाइड, उस पर कर दें. सभी पे वही एनिमेशन देनी है तो अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर देंगे, या सिर्फ पर्टिकुलर स्लाइड पे देनी है तो अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पे करेंगे. तो इस तरह से एनिमेशन उसके ऊपर अप्लाई आ जाएगा. क्लिक द ट्रांजिशन यू वांट, देन सेलेक्ट एनी अदर ऑप्शन यू वांट. You can also select speed, sound and slide advancement option, title, slides panel. आप यहाँ से वो सारे ऑप्शन भी जो है चूज़ कर सकते हैं. जैसे यहाँ दिया हुआ है स्लाइड ट्रांजिशन में आपका ये आ गया, स्पीड कैसे देनी है, साउंड क्या देना है और माउस क्लिक है ऑटोमेटिकली है. ये सारे ऑप्शन जो आप यहाँ से दे सकते हैं. उसके बाद अप्लाई टू ऑल स्लाइड या अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं. रिपीट द प्रोसेस फॉर ईच स्लाइड यू वांट टू ऐड ए ट्रांजिशन टू. फ्रॉम द स्लाइड ट्रांजिशन पैनल, if click apply to all slide, then the chosen transition will be applied to all the slide in a presentation. वो सबके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा. उसके बाद कहता है कि एनिमेट टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट. किस तरह से आप टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन या ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं. इन नॉर्मल व्यू डिस्प्ले द स्लाइड दैट हैज़ द टेक्स्ट और यू वांट टू बी एनिमेट. क्लिक कमांड, स्लाइड शो पे जाएंगे आप, कस्टम एनिमेशन पे आप क्लिक करेंगे. सी द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड, उस पर देखिए. ऑन द टास्क पैन अंडर कस्टम एनिमेशन पैनल क्लिक ऐड बटन विद मॉडिफाई इफेक्ट. ये ऐड बटन आया हुआ है, उस पर क्लिक कर देंगे. जो आप कस्टम एनिमेशन देना चाहें वो उसके ऊपर आप ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर लगा सकते हैं. उसके बाद नाउ कस्टम एनिमेशन डायलॉग बॉक्स पॉपअप आपकी स्क्रीन के ऊपर एक कस्टम डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. इसमें सारे आपके एनिमेशन दिए हुए हैं, किस तरह से आप एनिमेशन लगा सकते हैं. सेलेक्ट द डिज़ायर्ड एनिमेशन इफेक्ट एंड स्पीड एंड देयर अदर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट टैब्स एंड क्लिक ओके. यहाँ से आप कौन सा आपको एनिमेशन देना है वो लगाएंगे. ऑटोमेटिकली है, स्पीड है, जो चीज़ भी आप देना चाहो वहाँ देके और उसको आप ओके कर सकते हैं. सिमिलरली रिपीट द प्रोसेस 3 और 5 फॉर अदर ऑब्जेक्ट इन द. इसी तरह जो आप किसी और ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन देना चाहते हैं तो आप उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं. टू प्रीव्यू एनिमेशंस मेक श्योर ऑटोमेटिक प्रीव्यू ऑप्शन इज सिलेक्टेड. दिस इज़ टिक इन द बॉक्स. आप उसके ऊपर ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप वो आना शुरू हो जाएगा. उसके बाद सेट एंड रिहर्स स्लाइड टाइमिंग को कैसे करते हैं. ऑन द स्लाइड शो मेनू क्लिक कर रिहर्स टाइमिंग टू स्टार्ट द शो इन रिहर्स मोड. रिहर्स मोड में करने के बाद स्लाइड रिहर्स टाइमिंग के ऊपर आप क्लिक कर देते हैं. क्लिक द एडवांस बटन, एडवांस बटन पे क्लिक करेंगे. व्हेन यू आर रेडी टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, आप रेडी में हैं. अब कहते हैं व्यू स्लाइड शो, कैसे स्लाइड शो देखना है. यू आर ऑलरेडी नो दिस बट लेट अस रिपीट इट अगेन हेयर. टू स्टार्ट ए स्लाइड शो यू कैन डू एनी ऑफ द फॉलोइंग. क्लिक स्लाइड शो पे जाएंगे, बटन ऑन द प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे लिखा हुआ है ऑन द स्लाइड शो मेनू क्लिक स्लाइड शो ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे. ऊपर लिखा हुआ है जिसे F5 के सामने लिखा हुआ है. ऑन द व्यू मेनू क्लिक स्लाइड शो एंड प्रेस F5. आप देखेंगे तो स्लाइड शो आपके ऑप्शन जो है वहाँ पर दिखने पे आ जाएगा. अब उसके बाद कहता है कि आपने बना दी. अब कहता है कि किस तरह से हम प्रेजेंटेशन को प्रिंट करते हैं, प्रिंटिंग कैसे करते हैं. यू कैन प्रिंट ए प्रेजेंटेशन इन मैनी वेज इन इम्प्रेस.
with multiple slides on one page, with a single slide per page, with notes as an outline, with date and time, with page name and more। ये सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप जो है स्लाइड को, प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हैं। यूज़ कमांड कैसे करेंगे? फाइल मेनू पर जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की Ctrl+P दबा देंगे आप। इट विल ओपन प्रिंट डायलॉग, स्क्रीन के ऊपर आपका प्रिंट डायलॉग स्क्रीन के ऊपर आपका आ जाता है। हेयर यू स्पेसिफाई व्हाट टू प्रिंट, आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं। चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग, स्लाइड्स, नोट्स, हैंडआउट्स, आउटलाइन, जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं वो आपको वहाँ से क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ आ गया, प्रिंट में डॉक्यूमेंट कौन सा लेना है, हैंडआउट्स। स्लाइड पर पेज कितनी, एक पेज पर स्लाइड है, 6 आए, 4 आए, 5 आए, वो सब आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे, स्क्रीन पर दिखाया गया है। If you select a print handouts by selecting the option as a document type, then you can specify how many slides are to be printed on one page. For this, it activates the option slide per page, and from here you can select the number of slides to be printed on one document। इस तरह से आपकी हो जाएंगी। अब किस तरह से हम जो है प्रेजेंटेशन को PDF में कन्वर्ट करते हैं, क्रिएटिंग PDF ऑफ प्रेजेंटेशन। टू क्रिएट PDF ऑफ योर प्रेजेंटेशन यू कैन चूज टू वन ऑफ द फॉलोइंग। क्लिक द एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF आइकन, ये लिखा हुआ आपको, टू एक्सपोर्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट यूजिंग द डिफ़ॉल्ट PDF सेटिंग। इट विल आस्क यू एंटर द फाइल नेम, आपसे फाइल नेम पूछेगा, एंड लोकेशन फॉर द PDF इन द एक्सपोर्ट डायलॉग, किस लोकेशन पे है आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे। वंस डन इट विल क्रिएट ए PDF फाइल विद डिफ़ॉल्ट सेटिंग, डिफ़ॉल्ट सेटिंग से जो आपकी उसकी PDF जो है वो क्रिएट हो जाएगी। स्क्रीन पे आया जैसे यहाँ अपने नाम पूछा, फिर सेव एज टाइप, कौन से टाइप में करनी है, PDF में करनी है, और सेव कर देंगे तो आपका वो हो जाएगा। You can also decide about PDF setting of you have more control over the content and quality of a resulting PDF. For this you are filling use फाइल मेनू पर जाइए, फाइल पे गए, एक्सपोर्ट एज PDF का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। इट विल ओपन PDF ऑप्शन, आप स्क्रीन के ऊपर ये आ जाएगा। हेयर यू ऑफ वेरियस टेबल्स यू कैन मेक योर सिलेक्शन टू कंट्रोल द कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ PDF। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कितने पेजेस हैं, किस तरह करना, ऑल है, JP है, जो भी आपने ऑप्शन चाहिए यहाँ पे, क्रिएट PDF फॉर्म, एक्सपोर्ट बुक मार्क, जो भी आपको ऑप्शन लेना है वहाँ क्लिक करके और आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दोगे, आपकी जो है PDF फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। After making all the setting, finally click export. It will ask you to enter the location and file name of video to be created. Provide this and click save to export the file, just like a step of PDF, quick PDF हमने पिछले पढ़ा, उसके से आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्रिएटिंग वेब पेज एंड फ्लैश फाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, किस तरह से आप वेब पेज पे डालते हैं। टू क्रिएट ए वेब पेज और ए फ्लैश फाइल SWF, उसकी फ्लैश फाइल की एक्सटेंशन जो है .fw है। फ्रॉम ए प्रेजेंटेशन यू कैन यूज़ द सेम फाइल, एक्सपोर्ट कमांड पे जाएंगे। वंस द एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन यू नीड डायलॉग सेव एज टाइप, सेव एज टाइप यहाँ आपको लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने है एज HTML और XML फॉर वेब पेजेस, इसके आप यूज़ करेंगे। एज मैक्रोमीडिया फ्लैश फॉर ए फ्लैश फाइल, अगर आप वेब पे करना चाहते हैं तो HTML या XML यूज़ करेंगे, और फ्लैश के लिए करना चाहते हैं तो आप एज मैक्रोमीडिया फ्लैश को आप यहाँ से चूज़ करें, जो स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ दिखाया गया है। उसके प्रोवाइड द फाइल नेम एंड सेव, जो नाम दीजिए, जिस नाम पे सेव करना है वो नाम दीजिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए। योर डिजायर्ड वेब पेज फ्लैश फाइल विल बी क्रिएटेड, आपका वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद सेविंग द प्रेजेंटेशन इनटू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, अब आप उसको हम इम्प्रेस में बनाई है, पावर पॉइंट में सेव करना है तो उसके लिए है। सम टाइम यू कैन ओपन एंड यूज़ ए प्रेजेंटेशन इन सम अदर पॉपुलर सॉफ्टवेयर सच लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। फॉर दिस टू इम्प्रेस में जाएंगे, क्लिक कमांड, फाइल सेव एज पे क्लिक करेंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। नीचे यहाँ पे किस फॉर्मेट में करना है, पावर पॉइंट फॉर्मेट में आप लिख देंगे टाइप एज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और क्लिक ओके कर देंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन फाइल में आपकी ओके हो जाएगी। ये जो आपका सेशन 5 था, जिसके अंदर आपने कैसे स्लाइड शो क्रिएट करते हैं, स्लाइड शो रिव्यू के अंदर कैसे प्रिंट करते हैं प्रेजेंटेशन को, किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, वेब पेज पे किस तरह अपलोड एक्सपोर्ट करनी है, फ्लैश फाइल में किस तरह करनी है, वो सारी चीज़ें जो है हमने इस सेशन के अंदर आपके पढ़ी हैं। और सेशन आपका एंड हो जाता है। अब इस सेशन के साथ साथ जो हमारा सिलेबस भी जो आज ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपके चेक पॉइंट हैं, इसके चेक पॉइंट में हम ये MCQs टाइप के क्वेश्चन हैं, आप इन MCQs क्वेश्चन को पढ़ें, देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लेटेस्ट रिवाइज के अंदर जो आपके हमने चैप्टर पढ़ा, उनकी जो छोटी छोटी डेफिनेशन जो है, मेन पॉइंट्स जो हैं, वो आपके लेटेस्ट रिवाइज के अंदर आते हैं। सॉल्यूशन टाइम के अंदर जो क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिलीट नॉन कॉन्टिन्यूस स्लाइड फॉर योर प्रेजेंटेशन, ये स्लाइड शॉर्टर भी हमें पढ़ा हमने अभी, इस तरह से हम नॉन कॉन्टिन्यूस स्लाइड्स को सिलेक्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन, ट्रांजिशन क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा अभी उसके अंदर।
उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या होता है सारा डिटेल में हमने पढ़ा, किस तरह से हम स्लाइड शो शो करते हैं, मतलब F5 दबा के या कौन सी कमांड के द्वारा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्लाइड शो रिव्यू। स्लाइड शो रिव्यू की कौन सी कमांड है, किस तरह हम स्लाइड शो रिव्यू में हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, डुप्लीकेट फाइल बनाते हैं, इस तरह से करते हैं। उसके बाद हाउ विल यू प्रिंट स्पीकर नोट्स फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन। पीछे हमने पढ़ा कि हमने कौन कौन से चीज़ प्रिंट करनी है, प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना है, हैंड आउट्स प्रिंट करने हैं और आउटलाइंस प्रिंट करनी है, कितनी एक पेज पे प्रिंट करनी है, वो सारी जो हमने इसको पढ़ी पीछे सेशन में पढ़ी हैं। आप इस क्वेश्चन आंसर को, सोल्यूशन टाइम को, चेक पॉइंट को लर्न करेंगे, पहले लेसन को अच्छी तरह समझेंगे क्या है और उसके बाद इन क्वेश्चन चेक पॉइंट करने की कोशिश करेंगे और इन क्वेश्चन आंसर को जो है लर्न करेंगे। इसके साथ हमारा सिलेबस जो है ख़त्म होता है। अब हम जो है इसके लास्ट चैप्टर से ही रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और रिवीजन के अंदर आपको जो चेक पॉइंट या सोल्यूशन पॉइंट दिए जाते हैं, दो तीन सेशन के पहले हम आपको एक दिन लर्न करने के लिए देंगे और उसके बाद हम इनका गूगल फॉर्म के ऊपर आपका टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। आप इनको ध्यान से पढ़िए और इनको करने की कोशिश करिए। और आपके प्री बोर्ड भी जो हैं जनवरी में स्टार्ट होंगे, इसलिए रिवीजन जो आप जल्दी से अपनी स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन आंसर को लर्न करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस।